राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में ICMAI राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह ने कर्या संबोधित। युवाओं सु भारत विकास में सहभागिता निभावारो कर्या आह्वान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस माथे जयपुर भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ डॉक्टर मुखर्जी चित्र माथे पुष्पांजलि कर्या अर्पित। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानीसु प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 की आज सुबह शुरुआत। 4 जुलाई ताई होवन वाली इन परीक्षा खातर 5 लाख से बत्ता अभ्यर्थी है पंजीकृत। राज्य सरकार प्रशासनिक बेड़ा में कर्यो बड़ो फेरबदल। भारतीय प्रशासनिक सेवा 62 अधिकारियों कर्या तबादला। IAS अखिल अरोड़ा ने PHED विभाग ने सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश में लाडला 5 दिनासु मानसून ने मेहरबान होबासु कई जिला में बारिश दौर जारी। 12 और टोक में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। नदी नाला उफान में। और अब एक खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली रा विज्ञान भवन में ICAIR राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह ने संबोधित किया। राष्ट्रपति कहा कि ICMAI भारत ने एक विकसित अर्थव्यवस्था बनावा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्रपति कहा कि भारत आर्थिक विकास कानी सु तेजी रे साथे आगे बढ़ रही है। वे युवाओं सु भारत विकास में आपरी सहभागिता निभावारो आह्वान किया। Ladies and gentlemen, the practice of accounting has a long history in India. Kautilya's Arthashastra offers detailed guidance on account keeping not only for the kingdom's treasury but also for its manufacturing units. It speaks of the cost factor too, and its lessons can be easily applied to today's governments and private corporations. Throughout history, accountants have enjoyed high esteem in our society. The reason for that, I believe, is that accounting and accountability are deeply connected. We value accountability, therefore we attach special significance in accounting. In modern times, this rich legacy is carried forward by, among others, the Institute of Cost Accountants of India. The ICMAI was founded in 1944 for the regulation and development of the profession of cost and management accountants in the country. That makes it a witness in the saga of India's economic transformation after independence. Not only a witness, in fact, it has been a very crucial player in making the Indian economy one of the strongest in the world today. It has played its role away from the limelight, but experts in economic and corporate history appreciate the significance of the inputs of cost and management accountants in our industrial growth. I am glad to learn that this institute is the largest cost and management accounting body in the world, with about 1 lakh qualified CMAs and around 5 lakh students pursuing the CMA course. It has also been nurturing talent, producing cost accounting professionals who help businesses achieve cost competitiveness. With their inputs, our corporate sector has improved its performance, efficiency, productivity, and profitability. ICMAI has been a partner in the country's progress as it provides highly valuable support to policymakers, to central and state governments, as well as to various organizations in developing cost-efficient strategies, systems, and manuals. CMS has meanwhile seen their functions growing from cost accounting in factories to management accounting in boardrooms.
They now work in fields such as direct and indirect taxation, corporate laws, arbitration, insolvency, valuation, social auditing, independent directorship, banking and insurance. जयपुरा भाजपा प्रदेश मुख्यालय माथे आज भारतीय जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जीरा बलिदान दिवस माथे कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। इन दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत पदाधिकारी डॉक्टर मुखर्जीरा चित्र माथे पुष्पांजलि अर्पित करने वनाने श्रद्धांजलि दी। इन मौका माथे कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक विचार ने लेर भारतीय जनसंघ की स्थापना करी ही आज वणारो लगायोडो पौधो वट वृक्ष बन चुक्यो है। इंडो परिणाम ओ है कि भारतीय जनता पार्टी री सदस्य संख्या 14 करोड़ रे पार वे चुकी है। मुख्यमंत्री कहा कि डॉक्टर मुखर्जी समाज रा विकास खातर लगातार प्रयास करिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण में अपना संपूर्ण जीवन लगाते हुए एक देश को दिशा देने का काम किया, निश्चित रूप से मैं उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि आज का दिन ये महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि प्रेरणा है। प्रेरणा भी वो जिसमें देशभक्ति का जज्बा हो। हम आज ऐसे युग दृष्टा देशभक्ति की संजीव प्रतिमा, राष्ट्रवाद के अग्रदूत और संविधान और सिद्धांतों के सच्चे संरक्षक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया, माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, लेकिन आगे और भी उन्होंने जोड़ा, क्योंकि जो उनका नारा था उस नारे में एक स्पष्टता थी, लोगों को समझाने का भाव था। वो था एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। केवल ये राजनीतिक वाक्य नहीं था, ये भारत की आत्मा की पुकार थी, भारत की आत्मा की पुकार। ऐसे लोगों ने मिलकर के 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ की स्थापना की। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो स्थापना हुई, आज आपका परिवर्तित रूप आप देख रहे हैं। जो 10-15 लोगों की जो पार्टी थी, जो राष्ट्र को लेकर के उन्होंने गठन किया, आज खुशी है। कल माननीय अध्यक्ष जी जो 14 लोगों की थी, आज वो 14 करोड़ की पार्टी बन गई है। यह सच्ची श्रद्धांजलि माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगी। देश को आजाद करवाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उनकी माताजी भी संघर्षशील थी। ये बचपन से ही उनको संस्कार इस प्रकार के मिले। फिर आपको पता है कि बहुत कम उम्र में ही 1923 में ही वो LLB कर दी, LLM कर दी और 1927 में तो बैरिस्टर बन गए और 32 में वो मतलब वाइस चांसलर बन गए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। हाँ, यानी दुनिया में सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे कि उस उम्र में ही वो वाइस चांसलर बन गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानिसू प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज से शुरुआत हो चुकी है। 4 जुलाई ताईं होने वाली आ परीक्षा 24 विषया खातर आयोजित हुई रही है। इन परीक्षा खातर प्रदेश भर में 5,72 अभ्यर्थी पंजीकृत है। जयपुर में इन परीक्षा खातर करीब 197 परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जठे 3,22,072 अभ्यर्थी आ परीक्षा दे सकेला। वटे कुल 6,000 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी भी लगाई की है। पेपर ठीक था, पर उसमें जैसे मैथ है इंग्लिश है तो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज़्यादातर मैथ इंग्लिश थोड़ी हार्ड थी। एवरेज सारे पेपर ठीक था। आज जो फर्स्ट ग्रेड का वो पेपर हुआ था, जीके का जो पेपर था, वो वास्तव में बहुत शानदार पेपर था। बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे, प्रश्न ऐसे थे जिनमें हम खुद भी सस्पेंस पे आए हैं कि क्या किस प्रकार से क्या करना है। राज्य सरकार प्रशासनिक बेड़ा में बड़ो फेरबदल करियो है। इनके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवारा 62 अधिकारियारा तबादला किया गया है। सरकार आदेश जारी करने IAS
अखिल अरोड़ा ने वित्त विभाग सु हटार PhD में भेजो है। वठी वैभव गालरिया ने वित्त विभाग और भास्कर ए सावंत ने ACS गृह विभाग रा पद माथे लगायो है। वठी मुख्यमंत्री रा प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता ने CMO सु हटार उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। IAS अजिताभ शर्मा ने ऊर्जा विभाग में लगायो गयो है। इनके साथ ही 10 जिला रा जिला कलेक्टर, 3 संभागीय आयुक्त और जयपुर नगर निगम रा दोनों आयुक्ता ने बदल दियो है। प्रदेश में 24 जून सु 9 जुलाई ताई पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ो मनायो जावेलो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कया कि पखवाड़ो हर जरूरतमंद ताई सरकारी योजनावारो लाभ पुगावेलो। इनरे तहत लंबित पत्थरगढ़ी, सीमा ज्ञान और नामांतरण रा प्रकरणा रा निस्तारण समेत कई काम कर्या जावेला। वठी ग्रामीण विकास विभाग कानिसु पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में BPL परिवारा ने कई लाभकारी योजनाओं सु जोड़ियो जावेलो। हनुमानगढ़ जिला टिब्बीरा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ABDM कंप्लायंट ऐप आभा रे जरिया से QR कोड स्कैनिंग सिस्टम की शुरुआत करी की है। इनरे जरिए अबे मरीजा ने अस्पताल में लंबी कतार में नहीं लागनो पड़ेलो। मरीज आपरा मोबाइल आभा ऐप डाउनलोड आपरे मोबाइल में करने, अस्पताल में इनरे जरिया से QR कोड ने स्कैन करने आप OTP टोकन जनरेट कर सके है। इन टोकन नंबर रे मुजब मरीज जका है वे मरीज पंजीकरण काउंटर माथे जा डॉक्टर सु परामर्श खातर पर्ची ले सकेला। क्योंकि आभा ऐप डाउनलोड हो गया, उसमें आभा ऐप से जाएंगे और उसके अंदर जाने के बाद में जिसके आभा बनी है उसके सबके नाम आ जाए। जिस नाम से हमें पर्ची काटनी है हम उसको क्लिक करेंगे और फिर टोकन का ऑप्शन आता है, उसमें टोकन करेंगे, गेट टोकन आएगा और अपना टोकन के बाद काउंटर पे जाएंगे और टोकन दिखाएंगे और अपने पर्ची ले सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और कतार से बचा जा सकता है। ये बहुत एक अच्छी पहल है। हर जो संस्था है उसका एक QR कोड स्कैनर है, उसको स्कैन करके पेशेंट को टोकन के जरिए टोकन कट दिया जाता है। फिर वो हॉस्पिटल के फास्ट ट्रैक काउंटर पे आके अपनी पर्ची तुरंत कटा लेते हैं। इससे मरीजों को क्या फायदा है, जो पहले अन्य से ऐसी लंबी लाइनें लगती थी, उनको हॉस्पिटल में अपने रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, जन आधार का पूरा एड्रेस वो करवाना पड़ता था, वो अब नहीं करवाना पड़ता है। ये एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी मुहिम है गवर्नमेंट के द्वारा। लाइन में नहीं लगना पड़ता, बचत है, टाइम की बचत है और डॉक्टर साहब मिले न मिले, बैठे वेट करो, लाइन वाला सो झंझट रहता है, ये कोई चक्कर नहीं है। QR कोड से स्कैन करो, अपनी पर्ची खुद काटो और डॉक्टर साहब को दिखाओ। मैंने देखा बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। इन कतारों से बचने के लिए सरकार ने एक पहल की है। इस पहल के तहत उन्होंने एक QR कोड की व्यवस्था की है। उस QR कोड को मैंने गूगल में स्कैन करके और आभा ऐप को इंस्टॉल किया और उस आभा ऐप के अंदर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर को जोड़कर और पर्ची ऑनलाइन सबसे पहले पाई, तो मैं इन कतारों से बच पाया और सरकार की इस पहल को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा और ये सराहनीय पहल प्रशंसनीय है। पर्ची कटवाने के लिए लाइनों में लगने की जरूरत नहीं पड़ी। स्कीम लॉन्च की गई है जो कि मैंने आभा ऐप डाउनलोड किया और उसके बाद जो है QR कोड स्कैन किया, उसके बाद आभा ID उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हो गई और लाइनों से लगने के जो है झंझट खत्म हो गया और अंदर जाते मुझे टोकन नंबर मिला और अंदर जाते उस टोकन नंबर को दिया और मुझे मेरी पर्ची है जो मिल गई। खबरारो दौर चालतो रेवेरा पर अबार टेम हुई गयो है एक विराम रो। Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. अंतराल रे पछे एकर फेरू आपरो स्वागत है। बड़ा जणे आगली खबर माथे बाड़मेर जिला में सिंदूर रे पौधा री मांग बढ़वा लागी है। ओ पौधो कम पानी में विकसित हो जावे है। वटी इंडा फलासु मिलन वाला बीज 500 सु 600 रुपया प्रति किलो बिके है। एक पेड़ 7 सु 8 किलो सिंदूर देवे है। सिंदूर रा पेड़ लगावा सु किसाना ने आर्थिक संबल मिल रियो है। इनरे अलावा इन पौधाओं रो औषधीय जको है वो औषधीय और धार्मिक महत्व भी इन पौधा रो मान्यो जावे है। अपने पास भी सिंदूर के पौधे हैं जो मंगाते हैं और मोटर पे हमारी 400-500 हर गाड़ी के अंदर प्लांट आते हैं और चले जाते हैं। लोग सिंदूर के पौधे खरीद रहे हैं
और लोगों के मन के अंदर भावना थोड़ी पौधों के बारे में जागी है। गर्मी ज़्यादा थी, तो अभी शुरू हुआ है। साल भर में पौधे लगभग चले जाएंगे 5-6 हज़ार पौधे, सिंदूर के पौधे। लोगों को अपने राजस्थान बाड़मेर जिले के अंदर जो पौधे आ रहे हैं, इनको लोगों को कम ध्यान में है कि अपने पौधे इधर मिलते हैं कि नहीं मिलते। लोग बाहर से मंगाते हैं, ऑनलाइन से मंगा रहे हैं, और मेरे पास आते हैं पूछने के लिए आपके पास है। मैंने बोला हाँ मेरे पास जितने चाहिए थे आपको मिल जाएंगे सिंदूर के पौधे। ये सिंदूर का पेड़ है जो मोदी जी ने अपने आवास पे लगाया था। जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके भी नाम पे मतलब ये पेड़ का बहुत महत्व है। इससे सिंदूर निकलता है। और 200-250 रुपये के आसपास की है। और ये पौधा सर्वप्रथम अपने इस देश में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने सर्वप्रथम अपने आवास पे लगाया था। उसके बाद से हमारे यहाँ से जो नर्सरी से हर दिन 10 से 15 पौधे हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से, और सब लोग इस पौधे को महत्व दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे देशभक्ति का जो बॉर्डर इलाका है, सबके मन में देशभक्ति का जज्बा है यहाँ के लोगों में। भारत के गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने लगाया था ना, वो पौधा पहला पौधा उन्होंने लगाया था। उसके बाद में हमने भी खरीदारी की है। ये पौधा जैसे शरीर के लिए भी उपयोगी, बहुत लाभकारी होता है, और वैसे भी इसी बगीचे में सुंदरता के लिए भी होता है। और कॉस्मेटिक आइटम जो लेडीज यूज करती है उसके अंदर भी ये इसका ज्यादातर मिश्रण होता है। खेती अब सिर्फ परंपरा को नहीं बल्कि मुनाफा रोजरियो भी बनतो जा रही है। दौसा जिला रा किसान अब परंपरागत खेती री जगह आधुनिक और लाभकारी खेती कानी आप रुख कर रिया है। सिकराय उपखंड रा गनीपुर गांव रा किसान अनूप सिंह पुजारी 2020 में अमरूद की खेती शुरू करी ही और अब वे सालाना लाखों रुपया इनसू कमा रिया है। अनूप सिंह 5 बीघा भूमि माथे वैज्ञानिक तरीका से 1000 पौधा लगाया हा, जिनरे में 2021 में फल आवना शुरू हुआ हा। वे बताया कि सिकंदरा, महुआ और सिकराय जेड़ा आरे सारे रा बाजारा में अमरूदारी घनी मांग है। किसान भाई वर्तमान में ज्यादातर परंपरागत जो फसलें हैं उन्हीं का यहाँ कर रहे हैं खेती, जिससे कि उनकी कृषि आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसके लिए कृषि विभाग के माध्यम से क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को ट्रेनिंग के माध्यम से, फील्ड भ्रमण के माध्यम से ये सलाह दी जा रही है कि आप लोग परंपरागत फसलों के साथ साथ बागवानी वाली फसलें हैं, जैसे अमरूद है, यहाँ बेर है, आंवला है या भीलपत्र है, इनके बगीचे लगाएं, जिससे कि आपको कम समय में और कम लागत में अधिक आय हो सकती है। इसी कड़ी में हमारे जो किसान भाई अनूप सिंह जी, जो गनीपुर के किसान भाई हैं, वो भी हमारे संपर्क में आए और हमने उनको इस संबंध में पूरी तरीके से ट्रेनिंग दी। और आज वो किसान भाई इतने मतलब इसमें जागरूक हो चुके हैं कि वो अपने स्तर पे अभी अपने खेत पे अमरूद का बगीचा लगा करके और अच्छी इनकम ले रहे हैं, और साथ साथ में क्षेत्र के अन्य जो किसान भाई है उनको भी वो मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे ससुराल वालों ने मतलब माधपुर में ससुराल है बड़े भाई, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि आप अमरूद की खेती करें। फिर साहब वहाँ से अमरूद ला के तो फिर यहाँ लगाए, तो 1000 पेड़ लगाए। 1000 पेड़ों में हमको 2 बार फल देता है, और 2020 में लगाए। 2020 से के बाद में 21 में हमको फल देना स्टार्ट कर दिया। साल भर की तो साल जैसे हाल के ऊपर है, हाल ज़्यादा आ जाएगा 10 लाख रुपए का भी सकता है। वैसी दवाई आती है बेलम प्राइम डालो, नीमाटोड की मतलब कोई शिकायत नहीं रहेगी। डीडवाना ऐतिहासिक कचोलिया तालाब में बोटिंग की तैयारी करी जा रही है। केंद्र सरकार का निसु अमृत 2.0 योजना रे तहत 18 सिंधी और कचोलिया तालाब रो चयन करियो गयो है। इन रे तहत 1.5 करोड़ रुपया री लागत सु कचोलिया तालाब रो जीर्णोद्धार करियो जा रही है। इन दौरान 8 नई पाल, रनिंग ट्रैक, फेंसिंग और 4 दीवारी रो भी निर्माण करियो जावेलो। जिला कलेक्टर पुखरा सेन 8 पर्यटका ने बढ़ावो देवण खातर कचोलिया तालाब में नौकायन शुरू करवाना निर्देश दिया है। इन खातर नगर परिषद तैयारियां शुरू कर दी है। आ केंद्र सरकार का निसू जबकि अमृत 2.0 योजना है उनरे तहत इन तालाब रो चयन करियो गयो है। अमृत 2.0 के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार वो करवाया गया था। अभी 5 जून से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की वो शुरुआत माननीय जिला कलेक्टर महोदय और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा वो की गई थी। उसी के तहत उसके अंदर वो कलश यात्रा निकाली गई थी। तो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने वहाँ पे अवलोकन किया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ये आइडिया आया कि क्यों न इसको एक ये पर्यटन की दृष्टि से ये डेवलप किया जाए, ताकि एक लोगों को अलग ये अनुभव हो इस जिले के अंदर। तो उनके द्वारा ये निर्देश दिया गया, तो इसके अंदर ये बोटिंग की शुरुआत की जाए।
तो हमने वो कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में इसका एक BOQ वो तैयार किया है और हमने अखबार में भी ये पब्लिश कर दिया है। चिल्ला तालाब जो हमारा चिल्ला तालाब है उसका जीर्णोद्धार किया गया है, उसके लिए तो स्वागत है नगर पालिका का, नगर परिषद का। लेकिन साथ ही जो अभी नौका अभियान के लिए जो शुरुआत की जा रही है वो डिडोना की जनता के लिए एक अच्छी सौगात है। लेकिन साथ ही मेरा निवेदन रहेगा नगर परिषद से कि इसको सही ढंग से इसका संचालन किया जाए। भारत सरकार की अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत ऐसे पवित्र सरोवरों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण और जो रख रखाव की योजना में करोड़ों का बजट दे करके जो योजना जनहित में जारी की गई है, उसका लाभ डिडोना नगर को इस पवित्र चिल्ला सरोवर कचौलिया तालाब को हनुमान घाट के किनारे जो स्थित है उसको मिला है। बहुत सुंदर ये तालाब विकसित हुआ है, चारों तरफ इसकी चार दीवारी और इसकी पहाड़ का निर्माण हुआ है और वर्षा जल यहाँ संग्रहित हो रहा है। और यहाँ के प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद है, इतना यहाँ पे काम हुआ है। जो कलेक्टर साहब ने जितना काम कर रहे हैं ना अभी, और यहाँ नावें चलेगी जितनी अच्छी, तो पूरे मोहल्ले वासी, पूरे शहर वासियों को बहुत आनंद आएगा। और जहाँ भी बच्चे लोग खेलेंगे शाम को श्याम बाबा के भी यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा मेला रहेगा। हम सब में नौका चलाएंगे सब, और हम सब भी लुत्फ लेंगे, आसपास के एरिया सब लुत्फ लेंगे, यहाँ बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए वो सब भारत सरकार और राजस्थान सरकार धन्यवाद के पात्र है, और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ के धन्यवाद के पात्र है। प्रदेश में लाडला 5 दिनासु मानसून ने मेहरबान होवणासु कई जिला में बढ़िया बारिश हुई रही है। आज जयपुर, धौलपुर समेत कई स्थान में बारिश रो दौर चाल रही है। वठई, टोंकरा, मालपुरा और पीपलू गांव में तेज बारिश होबासु बांध और तालाबा में पानी की आवक बढ़ गई है। पीपलूसु बनवाड़ा सगड़ा मार्ग जलसु भर गया है। वठी टोंक जिला मुख्यालय माथे भी तेज गति सु सड़का माथे पानी बेवतो नजर आ रही है। मौसम विभाग आने वाला दिना में कोटा, भरतपुर और जयपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों और MP के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में मध्यम से तेज बारिश, तो कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो 12 डिस्ट्रिक्ट भंवरगढ़ में 190 mm यानी वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है। इसके अलावा 12 डिस्ट्रिक्ट में और भी 3-4 जगहों पर हेवी और वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। इसके साथ साथ में टोंक और धौलपुर में भी कहीं कहीं हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान में अगले 2-3 दिन मेघ गर्जन और बारिश के रूप में जारी रहेगा। आज कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी और अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। खासकर 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन जिलों में अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज और कहीं कहीं रेड अलर्ट भी दिया गया, यानी कि इन जिलों में कहीं कहीं 200 mm से ज़्यादा रेनफॉल अगले 24 घंटों के दौरान आ सकती है। इसके अलावा जयपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, साथ ही साथ उदयपुर, भरतपुर संभाग में भी कहीं कहीं मध्यम तो कहीं कहीं तेज दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। 12 जिला में लगातार वेरी बारिश तो जनजीवन प्रभावित वे रह्यो है। शहरा निचला इलाका में पानी भरीज गयो है। शहरों सबसु व्यस्तम स्टेशन रोड माथे पानी रे भर जाबासु लोगों ने घणी परेशानियां वेरी है। वठई दुकाना में पानी घुसबासु दुकानदारा ने नुकसान पुग्यो है। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश से चालता पार्वती नदी भी उफान माते आई गई है। वठी बारारा यातायात, साइबर और भंवरगढ़ थाना में 304 फीट ताई पानी भर गयो है। हालत बहुत खराब है। हमारे बुक डिपो की दुकान है। बरसात में अभी 6 बजे से चालू हुई है बरसात। कॉपी किताबी नीचे की अलमारियों का फर्नीचर में पानी आ गया। नगर परिषद द्वारा टेंडर किए गए लगभग 60 लाख रुपए के, लेकिन पता नहीं नालों की सफाई हुई कि नहीं हुई, ये जानकारी नहीं है। और नगर परिषद खुद भवन में ही 8-8 फुट पानी भरा हुआ है। 1 घंटे में यहाँ 2-2 फुट पानी हो गया नगर पालिका के सामने। और नालों का कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिसमें पानी निकल सके। सारे कचरे भरे हुए हैं। नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं देती इन पे। सीजन का टाइम है साहब, धंधा पानी तो हो गया बंद और बस इसी में लगे रहते हैं कि सामान कैसे ऊंचा उठाएं, कैसे नीचा रखें। नालों की सफाई सही नहीं हुई, पानी के निकास सही नहीं है, इसलिए हमारे को दुकान के सारे सामान ऊंचे करके
और हमें घर जाना पड़ रहा है वापस। दुकान नहीं खुले, दुकान कैसे खोलेंगे? दुकान के अंदर तो पानी जा रहा है। ये तो हर साल की तकलीफ है, हर साल बारिश में तकलीफ होती है कि लगातार बारिश के चलते बारां शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति है। साथ ही जिले के जो ग्रामीण इलाके हैं, शाहबाद है, अटरू है, वहाँ पर भी कई गाँवों का रास्ता जो है वो कट गया है, अवरुद्ध हो गया है मार्ग मुख्यालयों से या जिला मुख्यालय से। विपिन तिवारी, दूरदर्शन समाचार। मानसून री बारिश शुरू होबावा सु किसान आपरा खेता में बुआई शुरू कर दी है। कई जगह माथे बाजरा, मूंग, गवार जेडी फसला री बुआई शुरू हो चुकी है। साचोर में भी बारिश से शुरू होना सु किसान कृषि केंद्र माथे खाद और बीज की खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। किसाना ने उम्मीद है कि बढ़िया बारिश सु वड़ा री उपज भी चोखी होवेली। वटे खाद और बीज विक्रेताओं रो कहनो है कि इन बार किसाना रो रुझान जैविक खाद का नी देखने मिल रही है। लास्ट ईयर की बजाय थोड़ी बारिश कम हुई है, कुछ क्षेत्रों में हुई है। जो बिक्री है जो लास्ट ईयर की अपेक्षा कम है। लोगों का बाजरी की तरफ रुझान है और दूसरा अभी आगामी सीजन में मूंगफली और कैस्टर पे रहेगा। पहली बरसात अब सक्रिय हो गया है मानसून। अभी हमको उम्मीद है कि बारिश अभी मौसम जल्दी आ गया है, तो हमको अभी खेतों में ट्रैक्टर लेके धान बुआई के लिए ग्वार, मोट, तिल, मतीरा सब बोने की तैयारी चल रही है। अभी बरसात मानसून जल्दी सक्रिय हुआ तो उम्मीद लग रहा है कि अब की बार धान की बुआई जल्दी हो रही है तो अभी पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। अभी बरसात के टाइम में बाजरी बोते हैं, ग्वार बोते हैं, तिल बोते हैं और इंडी होती है वो भी बोते हैं। अभी जो बढ़िया बरसात हुई है, जो बरसात आती रही तो बढ़िया फसल होगी। किसानों के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब बरसात माता है, जो बरसात बढ़िया हुई तो बढ़िया है। बारिश अगर आगामी 6-7 दिन में अच्छी हो जाती है तो बाकी जो एरिया बाकी बसा है उसमें बाजरे की बुआई होगी, मूंगफली है, मूंग है, तिल है, सभी प्रकार की फसलें लगेगी और लोगों में रौनक है ये बड़ी मानसून को देखते हुए। बुलेटिन आखिर में एक खास खबर एक कर फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में ICMAI राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह ने करिया संबोधित। युवाओं सु भारत रा विकास में सहभागिता निभावारो करिया आह्वान। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रा बलिदान दिवस माथे जयपुरा भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ डॉक्टर मुखर्जी रा चित्र माथे पुष्पांजलि करिया अर्पित। राजस्थान लोक सेवा आयोग का निशु प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 की आज सुबह शुरुआत। 4 जुलाई ताईं होने वाली परीक्षा खातिर 5 लाख से बत्ता अभ्यर्थी है पंजीकृत। राज्य सरकार प्रशासनिक बेड़ा में करियो बड़ो फेरबदल। भारतीय प्रशासनिक सेवा 62 अधिकारियों करिया तबादला। IAS अखिल अरोड़ा ने PHED विभाग की सौंपी जिम्मेदारी। और प्रदेश में लाडला 5 दिनासु मानसून रे मेहरबान होबासु कई जिला में बारिश रो दौर जारी। 12 और टोंक में भारी बारिश तो जनजीवन प्रभावित। नदी नाला उफान माथे। DD न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी DD न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थान की खबरा रो बुलेटिन अठई पुरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।